اس آیت میں لکھا ہوا ہے لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر اور میں اپنے دین پر. اصل میں یہاں پر دین کی بات کی گئی ہے کہ تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے ان الدین اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. تو دوسرے کس کے دین پر پھر جب دین صرف اسلام ہے؟ تو آنسر دیکھو بھیا قرآن میں کافروں کا بھی ذکر ہے کہ نان مسلم، اور کافر کوئی گالی نہیں ہے، کافر کا مطلب ہوتا ہے نان مسلم. ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر. یہ ٹھیک ہے، حکم مطلب کیا کہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، کافر اپنے ہے؟ دین پر اور ہم اپنے دین پر. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کافروں کے لیے حکم کیا ہے قرآن میں؟ کس چیز کے حساب سے؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا حکم کیا ہے. کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ کیا کرنا ہے ذرا دکھو کیا کرنا ہے. میں تو آپ آپ سے بولتے پوچھ ہو رہا ہوں. قتل کرنا ہے، مجھے پتا ہے آپ بولتے ہیں قتل کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ذرا آپ دیکھو. نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے. نہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں، پکا؟ آر یو شور؟ اردو پڑھنا جانتی ہیں؟ ہاں جانتی ہوں. پڑھے پلیز. تھوڑا زوم کرو، اتنا چھوٹا سا مجھے کہاں سے دکھے گا؟ اس سے زیادہ زوم تو ہو ہی نہیں سکتا نا، فل اسکرین جو کر. اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان، ارے مجھے اتنا چھوٹا نہیں دکھ رہا ہے سچ میں. خدا پر یہ لکھا ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے اور نہ ان چیزوں کو اہم سمجھتے ہیں جو اس کے رسول کو کرتے ہیں. ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزے. اچھا کیا تو لکھا ہے اس ٹائم کی کافروں کی بات ہے، تھوڑی نا ابھی کی بات ہے. پکی بات ہے، اس ٹائم کے کافروں کی بات ہے. وقت آر کی یو شور؟ بات. آئی ایم شیور. اوکے، لیٹ می چیک یور شیورٹی. یہاں پر چلو پہلا جو کرو. لفظ ہے، پہلا جو لفظ ہے وہ لکھا ہوا ہے قاتل الذین، اس کا مطلب ہوتا ہے قتال کرو، جنگ کرو. الذین، ان سے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے کس پر؟ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ. اب جو اللہ اور آخری دن پر ایمان نہیں لاتے ان سب کے ساتھ جنگ کرنا ہے. تو پھر اب آپ اللہ زندہ اور کیوں ہو؟ ایک منٹ بھیا رکو. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیوں زندہ ہو؟ let me complete first then you can ask me the question. میں اس ارے لیے بھیا زندہ مجھے ہوں پتا ہے اب آپ کیا بولیں گے آگے. میں اس لیے زندہ ہوں کیونکہ میں ہندوستان میں رہتا ہوں اور یہاں پر مومن جو ہے اتنے پاورفل نہیں ہے کہ وہ میرا قتل کر دیں یا میرے ساتھ جنگ کریں، اس لیے میں زندہ اچھا ہوں. دوسری، چلو آپ ہندوستان. افغانستان میں کون سا کافر زندہ ہے ذرا میرے کو بتاؤ، ذرا ایک کا نام کون سا کافر بسا افغانستان میں؟ چل بھی اچھا باقی چھوڑو نا، میں افغانستان کی، مجھے نہیں پتا ہے وہاں کافر ہے نہیں ہے. میں تو وہاں مسلمس کے ساتھ کیا ہوا؟ مسلمس کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا ہے اس دنیا میں کہیں پر؟ افغانستان میں مسلم کے ساتھ ظلم ہو، ذرا بتائیں. چھوڑیے نا افغانستان، مجھے کیا کرنا ہے افغانستان کو؟ میں انڈیا سے ہوں، مجھے آپ کیوں دوسری کنٹریز کا بولتے ہیں؟ ہاں تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں نا کہ آپ کیوں زندہ ہو؟ میں اس لیے زندہ ہوں کیونکہ میں ہندوستان میں ہوں. اگر افغانستان میں ہوتا دیکھو تو بھیا میں ایک بات بولوں گی آپ کو، ظلم مسلمان کے ساتھ بھی ہوا ہے، ہندو ہر کسی مطلب. کدھر میں پوچھ رہا ہوں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کدھر ہوا میرے کو بتاؤ. کیوں کشمیر میں نہیں ہوا؟ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا کہ کافروں کے ساتھ ظلم کیا آپ لوگوں نے؟ کس کے ساتھ ظلم ہوا؟ ہم کشمیر میں. لوگوں نے کیا، ہم لوگوں نے کیا، ہندو ہم لوگوں کشمیر نے کو کیا. نکال اچھا کے کس نے نکالا؟ ہندو کس کشمیر نے کو نکالا؟ پولیٹیکل کھیل ہے سب. ٹھیک ہے، کسی نے نہیں نکالا یہاں پہ. ہاں رجیو چلیب یہ کون بول رہا تھا؟ پولیٹیشین بول رہے تھے رجیو چلیب غریب. ارے بھیا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مجھے ہمت نہیں ہے، میں ان سب جھنجھٹوں میں نہیں پڑتی ہوں. مجھے آپ خود بات کرو، نہیں تو آپ چھوڑ دیں مجھے. تو آپ کو مجھ سے بات کرنی، میں ہی آپ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے مجھے وہاں رجیو یہاں کے چلیب لفنگوں کو یا مت لائے. غلیب، ٹھیک ہے رجیو چلیب، ارے بھائی میں ہی بات کر رہا ہوں سمیر، سنو. رجیو چلیب یا غلیب کون نعرے لگا رہا تھا وہاں پر؟ کیا؟ رجیو چلیب یا غلیب کون نعرے لگا رہا تھا؟ رلیو چلیو یا گلیو ایسا بول رہے ہو؟ پہلے تو آپ الٹا کچھ فورن کشمیری بول رہے ہو. میرے کو کشمیری نہیں آتی، میں جتنا بول پا رہا ہوں. اس کا میننگ کیا ہوتا ہے اور کون بول رہا تھا؟ رلیو چلیو گلیو ایسا مجھے نہیں پتا ہے. ٹھیک ہے، آپ میں بھی آپ ہی سے سن رہی ہوں کچھ ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا رلیو چلیو گلیو تو آج کیوں؟ آج جو یہاں پنڈت رہتے ہیں ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے، پھر وہ نہیں ہے. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے ان کو کیوں نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ان کو کیوں نہیں رلیو چلیو تو گلیو ہم بول رہے ہیں؟ آپ اتنا ڈری ہوئی کیوں؟ آپ اتنا انسیکیور کیوں ہیں؟ میں ڈری ہوئی نہیں ہوں. کشمیر کے پنڈتوں کا ہے، کشمیر کے مسلمز کا ہے، جس کا خون پڑا ہے نا اس کشمیر پہ وہ. ٹھیک ہے بہن میری، مجھے 3 نعروں کا دیکھو مجھے یہ نعرے نہیں پتا، اور اگر ہے بھی نا تو غلط ہے کیونکہ کشمیری. اوکے مجھے ان کا میننگ بتا دے بھائی پلیز. مجھے رجیو چلیب غلیب کا میننگ بتا دو کیا ہوتا ہے. رلیو چلیب رلیو مینز ملنا، چلیو مینز چلی جاؤ، یا رلیو چلیو کیا اور کیا بولا آپ نے؟ غلیب مطلب مار جاؤ. ہاں، یا تو ہم ہاں میں مل لیکن جاؤ میں اس ایک منٹ ناؤ لیٹ می ایکسپلین. رلیو ہم میں مل جاؤ، ایمان والے بن جاؤ. آپ کی کشمیری پہ مجھے ہنسی آ رہی ہے، سوری. میں کشمیری نہیں ہوں بھائی. سوری مجھے ہنسی آ رہی ہے لیکن. ٹھیک ہے واٹ ایور، ہنس لو آپ کو. چلو ٹھیک ہے، بولو سوری. دوسرا چلیے، اس کا مطلب ہے یہاں سے چلے جاؤ چھوڑ کر کے. غلیب یعنی کہ مارے جاؤ. تو یہ نعرے کون لگا رہا تھا وہاں پر کشمیر میں؟ دیکھو بھیا اگر کوئی یہ مسلم بھی لگائے گا نہیں نعرے تو وہ غلط ہے. یہاں کوئی اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آپ کی جو مینٹلٹی ہے نا کہ مسلمان پنڈتوں کو مطلب ان کے خلاف ہے، ایسا اگر ہوگا بھی ان کیس کوئی تو یہ غلط ہے. ہم نہیں سپورٹ کرتے ہیں. ہم نہیں، غلط انسان ہر جگہ پہ ہوتے ہیں نا، غلط ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اب آپ مجھے ایک ایگزامپل بتائیں کہ کشمیر میں ہندوؤں نے کس مسلمان کو مارا؟ ایک کا نام بتائیں. کیا؟ کشمیر کے اندر ہندوؤں نے کس مسلمان کو مارا ہے اس کا نام بتائیں. اچھا، یہاں جو اتنے لوگوں کو شہید کیا
नाम बताएं, आपके एक आपके का नाम मुझे क्या बताएं, एक का नाम बोलना है, आपको पता है, सबको पता है किसने यहाँ पे मैं पूछ रहा कब्जा हूँ, किया है। बताएं तो किसको हिंदुओं ने किसको मारा कश्मीर में, किस मुसलमान को मारा, उसका नाम तो बताएं। नाम बताएं, करोड़ों है, किन किन का नाम बताऊं? एक दो का बताएं उनमें से, बताएं। मैं नहीं बोल सकती हूँ, आई एम सो सॉरी। आपको पता है कश्मीर की हालत क्या है, इसलिए मैं नहीं बोल उनको सकती, ठीक उनको है? उनको जो है वो यहाँ पे हिंदू, पंडित अगर उनको 100 पंडित मरे हैं अवाम ना ने तो मारा है, उनको पंडित अवाम ने मारा है कि आर्मी के हाथों मारे गए हैं, किनको? जो टेररिस्ट थे। एक्सक्यूज मी भैया, टेररिस्ट का नहीं, मैं लोकल लोगों का बोल रही हूँ, सारे टेररिस्ट नहीं वो होते हैं, ठीक है? आप लोकल तो मुझे लोग भी ही टेररिस्ट बना दो। वो आपके लोकल लोग ही टेररिस्टों को अपने घर में बना देते हैं। आपके वो लोकल लोग ही पाकिस्तान जिंदाबाद वो के नारे मुझे लगाते पता हैं। है, आपके वो वो लोकल मुझे लोग मुझे जो है ना, मुझे रोना ये आएगा, जो मुझे पाकिस्तान का सुनो, मुझे ये मत जो रुलाओ, मुझे वेट पता है वेट यहाँ क्या हुआ है भैया, ये सुनो, जो शहीद मुझे चौक रोना के आएगा, ऊपर मुझे मत रुलाओ। आपको पाकिस्तान का झंडा लहरा करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं ना, वो आपके अपने लोकल लोग ही हैं, बाहर वाले नहीं है कोई। थर्ड क्लास का बच्चा, वो भी टेररिस्ट था। थर्ड क्लास का बच्चा भी जो पढ़ने गया, उसकी लाश आई, जिनको किसकी पैलेट बात? यहाँ आंखों में मारे, वो भी थे। 7th क्लास की लड़की जिनके रेप नहीं हुए नहीं यहाँ, नहीं जिन नहीं नहीं लड़कियों के, जिनको नहीं, आर्मी वालों ने रेप करके नहीं फेंका, बेटा, वो भी नहीं बेटा, टेररिस्ट थे। आपके अपने टेररिस्ट जो है आर्मी वालों के कपड़े पहन के वहां पर जो है ना रेप भैया करते हैं, चुप घटना करो, होती है, अरे नाम भैया बताइए। हमने देखा है, हम यही के, हम जिए भी यहीं, मरेंगे भी यहीं। प्लीज आप इस कश्मीर का मसला ही मत लो, मैंने अपनी आंखों से देखा क्या हुआ है, प्लीज मुझे रोना आएगा। और आपने 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 नहीं देखा, मतलब आपको अपनी चीजों के ऊपर रोना आता है, और वो जो 4 से 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को आप लोगों ने घर से बेघर हर कर किसी दिया, के लिए, पंडित भी है उनके ना, वो लिए। इंसान है, हर किसी के लिए। और हाँ, तो हमने फिर नहीं आप निकाला, किसने किया, तो फिर किसने किया? आपके मुसलमानों ने किया ठीक ना। है, हमने नहीं निकाला, हमने नहीं। अगर मुसलमान भी होंगे उसमें कुछ गिने चुने, तो वो तो हर जगह होते हैं गलत लोग, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैं तो उनके अगर हर साथ नहीं जगह हूँ। अगर हर जगह वो लोग होते हैं, तो फिर उनको डिफेंड क्यों करने आई? क्या? नहीं, मैंने उनको डिफेंड नहीं किया, कहाँ पे किया? तो क्यों कहा कश्मीर में जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे? हाँ हो रहा है, अभी भी हो रहा है, हम पे हो रहा है, अरे हाँ तो भाई सच। पहले जुल्म, अरे भाई तुमने जुल्म किया है दूसरों पर, वो जुल्म नहीं है क्या? हमने नहीं किया है, पॉलिटिकल लोगों ने और कुछ गिने चुने लोगों ने तो हो भाई किया होगा, पॉलिटिकल ठीक है? पॉलिटिकल कौन सा था जो वहां बैठ करके हिंदुओं को मार रहा था? मार तो तुम लोग तो रहे मैं थे। तो वो, उफ खुदा, मैं नहीं आपको समझा सकती। एक मिनट, जगमोहन मारने आया था हिंदुओं को? मैं आपको नहीं समझा सकती हूँ इससे जगमोहन ज्यादा। मारने आया था, या फारूक अब्दुल्ला मारने आया था, या आर्मी मार रही थी? कौन मार रहा था उन मुसलमानों को? आर्मी, आर्मी। आर्मी मार रही थी। आपके मुसलमान क्या कर रहे थे? वो हाथ पे हाथ रख के घर में बैठे थे, वो तो नहीं मार रहे थे ना? वो नहीं मार रहे थे ना किसी को? 90s में यहाँ पे घर में घुस घुस कर मारा है मैं मुसलमानों को, पूछ रहा प्लीज हूँ आप उस मत 90 बोलिए उस इस। 90 उस 90 ये और टॉपिक नहीं 92 है ना, में कश्मीर क्यों का नहीं टॉपिक बताऊं? नहीं है ना, यही टॉपिक है मेरा। अभी का मेरा टॉपिक नहीं है ना। मेरा अब यही टॉपिक है। मैं अच्छा, आपकी ये जो कुरान है ना, ये जिसको आप कह रहे हो कि ये उस वक्त के लिए था, आपके लिए नहीं है, ये दिखा रहा हूँ कि ये आज भी फॉलो किया जा रहा है। तो फिर यहाँ यही पे मेरा क्यों टॉपिक लोगों को मारा? पंडित ही खाली मारे, हम नहीं, हम मतलब मुसलमान नहीं मारा यहाँ कोई। है। इस कुरान की आयत को फॉलो करके किसने मारा? किसने मारा? तो आग लगी उन लोगों को, मुझे क्या है उनके साथ, मैं तो नहीं बोल रही हूँ ना उनके, मतलब उनके फेवर में। ओके ठीक है, तो ये आपको कुरान तो बोला ना कि अब आपको मैं एक आयत दिखाने वाला हूँ जो तीनों को, वो जो आपका है ना, वो रली चली गली, वो तीनों को जो है आपकी एक आयत एक्सप्लेन करती है तीनों को। लो अब इस पर मुझे जवाब देना। ये सूरह अल माइदा की आयत नंबर 33 है। जिस तरीके से तुमने मारा है ना तुम्हारे मुसलमानों ने, वो सेम वही बताती है। जो अल्लाह ताला और उसके रसूल से लड़े और जमीन में फसाद फैलाए फिरें, उनकी सजा यही है कि वो कत्ल कर दिए जाएं, यानी कि तो उनको मार दो, या सूली चढ़ा दिए जाएं, या मुखालिफ जानिब से उनके हाथ और पांव काट दिए जाएं, या उन्हें जिला वतन कर दिया जाए, उनके घर से निकाल दिया जाए। ये तो रही उनकी दुनिया की जिल्लत और ख्वारी, और आखिरत में उनके लिए सबसे बड़ा अजाब है। ये जो काटने मारने और घर से निकालने का हुक्म तुम्हारी कुरान की आयत दे रही है, यही कहना तुमने कश्मीर में लोगों के साथ। फिर से बोल रहे हो हमने किया, समझ नहीं आता है ना आपको मैं जो मैं बोल बोल रही रहा हूँ ये कुरान किसने, काफिरों ने फॉलो किया था कि वहां आर्मी ने हूँ। फॉलो किया? अगर यहाँ 90% मुस्लिम है ना, तो 80% ठीक है, 10% गलत हो सकता पहले है, कितने ठीक है? थे? यहाँ पे आज अगर क्या वहां 5% हिंदू है तो पहले कितने हिंदू थे वहां पर कश्मीर में? ये बताओ कितने थे? थे, पहले बहुत कितने थे? थे, बात कहाँ गए वो लोग? पंडित भी रहते थे, मुस्लिम भी रहते कहाँ थे। गए वो लोग? कहाँ गए वो लोग? वो आप लोगों की पॉलिटिकल लीडर्स ने यहाँ पे किया, वो हमने नहीं कहाँ किया, गए? ठीक मैं है? पूछ रहा हूँ बहन मेरी में, वो कहाँ गए? बाहर गए हाँ, रहने। क्यों गए? क्यों गए बाहर? क्यों गए? अब एक ही बात पे आप दिमाग खाओगे मेरा, है ना? मैं आपसे रीजन जानना चाह बाहर रहा हूँ, गए, क्यों गए? बाहर गए, वो हिंदू बाहर वो गए। कश्मीर छोड़ के क्यों गए? क्यों गए? ओह खुदा, कैसे समझाऊं अब? मुंह से। मैंने बोला मैं एक ही बात नहीं कर सकती हूँ रिपीट अब। तो मतलब आप मानती हैं कि आपके मुसलमानों की वजह से गए वो? आपके नहीं मुसलमानों मुसलमान, ये मत बोलो, फिर से आप वही बोल रहे हो ना, आपके मुसलमानों ने, जैसे यहाँ मुसलमान। अच्छा एक बात बताओ, एक बात चलो, आप एक कम से कम, आप और भी कुछ नहीं है, आप एक लड़की, एक महिला तो है ना, एक लड़की हो ना, हाँ हूँ। एक लड़की की इज्जत उसको कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी प्यारी होती है, इसका तो दर्द होगा तुमको, या इसका भी नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये बताओ, जिन महिलाओं को, जिन बेटियों को, जिन लड़कियों को सरे बाजार रोड पे नंगा करके उनका रेप किया गया, उनके लिए भी तुम्हें दर्द नहीं है? किसने किया रेप? वही तो बोल रही हूँ, देखो कुछ आपकी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और कुछ हो सकते हैं मुसलमान, ठीक है? सब नहीं, वहां पर उनमें हम तुम्हारे, नहीं है। अगर तुम पॉलिटिकल लीडर की बात कर रही हो तो वहां पे तुम्हारे सीएम का नाम था फारूक अब्दुल्ला। तो अब मुझसे मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहती, जो भी हो,
जो भी मैं हो, ये मैं कह रहा आपको हूँ कोई भी हो, मैं ये खुदा कह तो रहा हूँ नहीं है ना वो। बोल दो फारूक अब्दुल्ला हराम की औलाद लानती है वो जिसने ऐसा करवाया। मैं किसी को देखो भैया, आप इतना इस्लाम के खिलाफ बोलते हो, जब मैं आपको भैया भैया बोलती हूँ, मैं किसी को कैसे गाली निकाल सकती हूँ, आप बताओ। मैं आपको बहन बोल रहा हूँ, प्यारी बहन बोल रहा हूँ, मैं इस्लाम के खिलाफ बोलता हूँ, मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलता। मैं ये कह रहा हूँ पॉलिटिकल की जब बात कर रहे हो तो पॉलिटिकल जो है ना वहाँ जिस पे देखो सीएम लिखा जिसकी हुआ फारूक चलो अब्दुल्ला। सुनो, आप लोगों को है ना दिल में इतना पंडित सा, मैं बोलती हूँ जिसकी वजह से भी जो भी उसमें इन्वॉल्व होना, चाहे वो मुसलमान हो, वो काफिर हो, पोलिटिकल कोई भी हो, उसको लानत पर, वो हमेशा जहन्नम में। देखो कोई अगर मैं किसी ये पंडित को, तुम्हारा कहना किसी हिंदू को, नहीं मेरा कहना नहीं है, मेरे ये मजहब तुम्हारा का कहना कहना है, है। ये नहीं तुम्हारा नहीं, कहना है कि उन पर लाना, एक मिनट, ये तुम्हारा कहना है कि उन पर लाना और वो जहन्नम में मेरे जाएंगे। मजहब में, मेरे मजहब में ये नहीं लिखा किसी बेगुनाह को ऐसा ही मारो। नहीं करो। नहीं नहीं हेलो हेलो हेलो, ओ बहन जी सुनो, कुरान का कहना है ऐसा ही करो। नहीं, कुरान का कहना है ऐसा एक ही एक करो। इंसान को मारना, पूरी इंसान, एक इंसान बेगुनाह इंसान को, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, एक बेगुनाह इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करना। एक जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, यही वो आयत है। और इस पे आगे ये भी लिखा हुआ है कि दो शर्तों के अलावा या तो जमीन में फसाद फैलाता हो या तो फिर जो है ना वो किसी को कत्ल कर डाले। शिर्क जो है, शिर्क वो जमीन का सबसे बड़ा फसाद तो है। शिरक हम करने देखो वालों भैया, को मैं एक मारा। बात एक सुन ले बहन मेरी, मेरी, तेरे को नहीं पता, बहन मेरी तेरे को कुरान के बारे में नहीं पता, जब मैं बता रहा हूं तो सुन ले। जैसे भाई साहब यही मैं वो आपको आयत है। स्क्रीनशॉट भेज दिया। हाँ जी, यही वो आयत है जिसको तुम कहते हो कि एक इंसान को मारना सबसे बड़ा गुनाह है। ये आयत है, मन अज़ल ज़ालिका कतलना अला बनी इसराइल इन्नहु मन कतला नफ्सिन बिगैरि नफ्सिन फसाद फिल अर्दि फकन्नमा कतलना सजमीआ। यहाँ पे लिखा हुआ और इस वजह से नबी करीम हमने बनी इसराइल के ऊपर ये लिख रखा, जो शख्स किसी को बगैर इसके कि वो किसी का कत्ल कर दे या फिर जमीन में फसाद फैलाए कत्ल कर दे, तो ऐसा है जैसे कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। अब ये जो किसी का कत्ल कर दे उसको मारना इंसानियत का कत्ल नहीं है, और जो जमीन में फसाद फैलाए उसको मारना इंसानियत का कत्ल नहीं है। और शिर्क करना, कुफ्र करना, जमीन में फसाद फैलाना है, तो काफिरों को मारना इंसानियत का कत्ल नहीं है। भैया कहाँ लिखा है शिरक करना, ये है शिरक करना, अरे फसाद ये लिखा है ना कैसे? भाई, अरे बहन ये फसाद लिखा है ना, जमीन में फसाद मचाने वाला, लिखा नहीं है? अरे भैया धीरे से, मैं आपसे चिल्ला के बात कर रही हूँ यहाँ से, आप क्यों चिल्ला रहे हो? सॉरी, ये बताओ। आप एक्स मुस्लिम हो, आप काफिर, मुझे अरे भाई कुछ ये नहीं, आप लिखा, मेरे लिए भाई हो, ठीक है? मैं आपको नहीं यहाँ से एग्रेसिव हो जाऊंगी, ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा धीरे से बात करो। ओके, ये मुझे बताएं ये क्या लिखा है? जमीन में फसाद मचाने वाला हो, लिखा है कि नहीं लिखा है? इसमें कहाँ लिखा है कि शिरक, जमीन में फसाद मचाना शिरक होता है? जरा कुरान में, बताओ। ओके कुरान में ही लिखा है कि सबसे बड़ा नहीं, इस आयत में कहाँ लिखा है जमीन में इधर अरे लिखा है जमीन बहन में मेरी, फसाद मचाने वाला हो। अरे बहन मेरी, जमीन में फसाद मचाने वाला ही सामने लिखा हुआ है। और कुरान ही कहता है कि शिर्क जो है वो सबसे बड़ा फसाद है, जमीन का सबसे बड़ा फसाद शिर्क है, कुरान ही कहता है। अगर कोई जरा दिखो कहाँ कहता है शिरक सबसे बड़ा फसाद है, जरा दिखो कहाँ कहता है। ओके, सूरह बकरा आयत नंबर 217। मैंने हिफ्ज नहीं किया भाई साहब, जो भी वहां से दूसरे बोल रहे हैं, मुझे देखना पड़ेगा ना। अरे मैं खोल रहा हूँ ना भाई, सूरह अल बकरा आयत नंबर 217। लो, लोग आपसे हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई के बाबत सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि इनमें लड़ाई करना बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह की राह से रोकना और इसके लिए साथ कुफ्र करना और मस्जिद हराम से रोकना और वहां के रहने वालों को वहां से निकालना अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा फितना है। फितना, फसाद, क्या है भाई? अल्लाह के दीन, अल्लाह से रोकना और अल्लाह के दीन से रोकना, ये सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा फितना है। साबित हो गया या कुछ और करना है? आप इसको बैक कीजिए, छोटा कीजिए, मैं खुद पढ़ूंगी एक बार। पढ़िए, आराम से पढ़िए। लोग आपसे महीनों में लड़ाई की सवाल करना, इसमें लड़ाई गुनाह है, लेकिन अल्लाह की राह से रोकना, इसके साथ को मस्जिद हराम से रोकना और वहाँ के रहने वालों को निकालना अल्लाह के नजदीक इससे भी बड़ा गुनाह है, फितना। शिरक, शिरक का कहाँ है, जरा दिखाओ। अरे सिस्टर, ये कुफ्र लिखा हुआ है कि नहीं? कुफ्र और शिर्क लिखा हुआ है नहीं यहाँ पे? ये क्या है? कुफ्र करना और अल्लाह के साथ कुफ्र करना, ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, तो अब इससे क्या होता है, मतलब साबित क्या होता है इससे, मुझे जरा समझो। अगर आप ये पढ़ने के बाद भी ये पूछ रहे हैं कि इससे क्या होता है, तो अब मैं नहीं, आप जो बोल, सिस्टर 2 मिनट मेरी बात सुनिए। आप जो पहली आयत जो दिखाए थे जिसमें अल्लाह ने कहा है कि एक लोगों को कत्ल करना, उसको आप वापस लाएं। जी मैं लिख देता हूँ, 5 की 32 की 33। ओके जी, 5 की 32 लेके आता हूँ। 5 की 33 है ना वो? हाँ 5 की 33 में है, मतलब 5 की 33 में तो कत्ल करने का हुक्म है, 32 में बनी इसराइल का हुक्म बता रहा है। जी, बनी इसराइल में, बनी इसराइल वाला लाना है ना? जी जी अरे हाँ, उसी से शिर्क साबित हो जाएगा, वो बछड़े को मारने वाले को तो कत्ल करने को कहा था, राइट? जी, वो तो सूरह बकरा में है वो। हाँ वो भी मिल जाएगा। अभी देखिए सिस्टर, इसमें आप पहली बार देखेंगे ना, इसी वजह से हमने बनी इसराइल पे लिख दिया। आप ये पहली लाइन पढ़ेंगे ना, इसी वजह से हमने बनी इसराइल पे लिख दिया, ठीक है? इसका क्या मतलब, किस वजह से अल्लाह ने बनी इसराइल पे लिखा है? इसी वजह से हमने बनी इसराइल पे लिख दिया। किसी को फिक्र जी, आपने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की है कि अल्लाह ने एक नफ्स को कत्ल करना, पूरी इंसानियत को कत्ल क्यों लिखा है? क्योंकि अल्लाह पहले कह रहा है कि इसी वजह से, इसका वजह जानने की कोशिश आपने कभी की है?
तो फिर वो आयत क्या है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उसका क्या है? वो नहीं है कुछ आपके हिसाब से? जी उसको मैं बता देता हूँ, उसको मैं डिफेंड कर देता हूँ, या पहले इसको बता दूं कि बनी वो इसराइल में वो अल्लाह ने जो क्यों आयत कहा है है। ना, मैं 1 मिनट को उस आयत के बारे में बता दूं। वो आयत जो है ना सिस्टर, वो एब्रोगेट हो गई है, सूरह अत-तौबा को एब्रोगेट कर दिया। वो तब तक था जब तक अल्लाह के रसूल के ऊपर जो है ना किताल का यानी कि जंग करने का हुक्म नहीं आया था, वो तब तक थी। जब अल्लाह के रसूल के ऊपर जंग करने का हुक्म आ गया ना काफिरों के साथ, फिर वो आयत एब्रोगेट हो गई। कुरान वो हमेशा तो के लिए, ठीक है, वो हमेशा के लिए कुरान एब्रोगेट हो गया सिस्टर, लेकिन अगर आप उसकी तफसीर पढ़ेंगे ना तो इसमें आपको पता चलेगा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु बुत अलैहि को वसल्लम, जब आप जिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा ले, कोई मसला नहीं है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा के जो बुत रखे हुए थे उनके माबूदों को जब बुरा भला कहते थे, गाली देते थे, तो कुछ लोग आया रसूलुल्लाह के पास, उनका मतलब कि वहां के जो इवन सरदार लोग जो थे वो आए रसूलुल्लाह के पास, कहे कि यार आप एक काम करो, हमारे बुतों को गाली देना बंद कर दो, ठीक है, या फिर आप एक काम करो, 1 साल हमारी बुत की इबादत आप कर लो, फिर उसके बाद 1 साल हम आपकी अल्लाह की इबादत कर लेंगे। तो रसूलुल्लाह खामोश हो गए। जब मुसलमानों ने रसूलुल्लाह से कहा कि या रसूलुल्लाह ये तो बहुत अच्छा मौका है कि हम 1 साल उनकी इबादत करते हैं, वो 1 साल तो फितना नहीं होगा, तो 2-3 दिन के बाद अल्लाह ने ये आयत नाजिल किया कि ए मुसलमानों सुन लो, जिसकी तुम इबादत करते हो ना, रसूलुल्लाह बोले काफिरों से कि काफिरों तुम सुन लो, तुम जिसकी इबादत करते हो ना उसकी इबादत हम हरगिज नहीं कर सकते, और हम जिसकी इबादत करते हैं उसकी इबादत तुम नहीं कर सकते हो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, भाड़ में जाए तुम्हारा बुत और तुम्हारा दीन, हमको हमारा दीन मुबारक है, तुम अपना बुत लेके तुम अपने घर रहो। इसका मतलब ये है। पैसा नहीं है बाढ़ में जाए, ये आप अपना मिला रहे हो, जी, मिलावट मत करो। ये मैं अपनी जी मैं ये अपनी वर्ड डाल दिया हूँ, लेकिन रसूलुल्लाह जब मुसलमान लोग रसूलुल्लाह से कहने लगे कि या रसूलुल्लाह अच्छा मौका है, तो ये आयत काफिरों के लिए नहीं मुसलमानों के लिए आया था कि भाई उसका दिन उसका मुबारक है, जाने दो उसको, हम अपने ही दिन पर रहेंगे, क्योंकि हम उसकी इबादत हरगिज नहीं कर सकते जिसकी इबादत वो करते। वो लोग तो ऑफर लेके आए थे कि भाई हम आपकी इबादत कर लेते, आप हमारी कर लो, लेकिन तो उसको हमारा ठुकराया। भैया सुनो, हमारा रिलीजन का बेस ये है ना कि मतलब शिरक एक मतलब शिरक हम नहीं कर सकते। तो फिर आप क्यों कहते हैं कि इसको मतलब कि आप शिरक नहीं कर सकते ना, जो सीधी सी बात है, आपका रिलीजन यही कहता है कि शिरक नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी आयत उसके ऊपर क्यों फिट करते हैं कि ये काफिरों के लिए कि भाई तुम्हारा दिन तुमको मुबारक। दूसरी जगह एक और आयत है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, लेकिन दूसरी जगह ये भी आयत है कि आप अहसनुल उम्मत हो, आप अच्छे उम्मत हो इसलिए क्योंकि आप काफिरों के गले में जंजीरें डाल के खींच के लाते हो और उसको इस्लाम में दाखिल करते हो। उम्मती तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। जी एग्जैक्टली। देखो भैया, जितना मैंने पढ़ा है ना, मतलब जितना मुझे अपनी फैमिली से पता है, ये है कि हमारा दिन हमारे लिए और आपका दिन आपके लिए, और दिन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बाकी काफिरों के साथ अल्लाह क्या करेगा, वो अल्लाह और उनके बीच में, हमें ऐसा नहीं लिखा है कि आप उनकी गर्दन हटा दोगे, और जो ये लिखा है ये किसी टाइम या किसी रीजन, ऐसा नहीं कि आज की दुनिया में आप उठोगे तो किसी को गला काट दोगे, ऐसा कहीं पर नहीं है, ठीक है। समीम भाई सुने, मजे की बात ये है। अच्छा भैया एक बात सुनिए, सुनिए एक मिनट मुझे समीम भाई से बात बोलनी है, आप अभी थोड़ी देर पहले जब इन्होंने वो कोट की थी लकुम दीनुकुम वलिय दीन, और मैंने इनको शमीम भाई ये कहा कि वो आयत एब्रोगेट हो चुकी है। इन्होंने क्या कहा था, कुरान कयामत तक नहीं, मेरे लिए वो एब्रोगेट नहीं हुई है, मेरे लिए वो कयामत तक के लिए। मुझे नहीं पता आप क्यों बोल रहे हैं एब्रोगेट हो गई है। अब ठीक है ना सिस्टर, ठीक है, मुझे समीम भाई से बात करने दो, आप बीच में डिस्टर्ब करें। तो समीम भाई ने क्या कहा था कि मेरे लिए कयामत तक के लिए है, मेरे लिए एब्रोगेट नहीं हुई है, लेकिन जब जंग की आप आयत दिखाओगे तो ये क्या कह रही है, ये उस वक्त के लिए है।